we have to make an object. Suppose object name is method. We have to make a method. The method name is input. Input के अंदर क्या आएगा? L equals to some predefined value. Some predefined value. अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किए थे? एक मिनट रुको तो। लास्ट क्लास में क्या प्रोग्राम हुआ था? किसी को याद है? Have you remember? Java program. $16.9 না? এরিয়া হয়েছিল তো? তাহলে আগের দিন তো এরিয়া করেছিলাম, তোরা কেউ কিছু বলছিসও না। लास्ट क्लास में तो ये प्रोग्राम किए थे हम, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यस सर, कंस्ट्रक्टर का हेल्प से बताने वाले थे आज। तो चलो उसी को कंस्ट्रक्टर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली कहाँ गया प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को अगर हम देखेंगे, बेसिकली दिस मेथड is used for to initialize the object value. Okay, when we call this method basically using that ob object. So ob object के लिए 12 and 5 set for L and B, length and breadth. After that, if we write this line ob dot show method call another method, that is area से क्या होगा? Calculating the area of a that particular rectangle L and B, L into B. Now if we implement this program using constructor, so constructor से कैसे होगा देखो, कंट्रोल ए कंट्रोल पी, यहाँ पे क्लास नाम हम चेंज करते 21 होगा। सो इस मेथड को हम लोग इरेज करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे? कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। सो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? एंड कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। सो इनिशियली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का वैल्यू ऐसे असाइन किए, L इक्वल्स टू some value, again some hard coded value, and B equals to again some hard coded value. ठीक है, after that close. So area underscore 21 underscore 9, ये बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्लास नेम एंड मेथड नेम अगर सेम होता है, मेथड कैसे पता चला? अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओपन क्लोज ब्रेसेस होता है तो दैट इज नोन एज मेथड। ठीक है, एरिया अंडरस्कोर 21, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये पब्लिक तुम यहाँ पे लिख सकते हो, पब्लिक, बिकॉज कंस्ट्रक्टर यूज होता है क्लास के बाहर से एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है? सर अगर पब्लिक नहीं देंगे तो वो ऑलरेडी पब्लिक रहेगा ना। पब्लिक एक्चुअली पब्लिक रहेगा नहीं, एक्चुअली डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। डिफॉल्ट जावा में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट का इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अगर ये पब्लिक नहीं देंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, तो उसका मतलब रेस्ट्रिक्शन कुछ है, तुम डिफॉल्ट होने से ये क्लास अगर किसी पैकेज के अंदर हम लिखते तो पैकेज के बाहर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाते। ऐसे नॉर्मली एक पैकेज के अंदर ये सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या विद इन क्लास नो प्रॉब्लम। But if we access this or if we create an object from outside this package, then it will show some error message. Okay, now how to call this constructor? Basically, when we create an object of that class, at that moment this line, this is basically first word is class name, then second one is object name, third one is name memory allocation operator, that means new operator, and last one is constructor. It is constructor, and this constructor takes no argument. That is why I'm writing here area underscore 21 underscore 9 with no argument. That means this is a default. This is a default constructor. Okay, basically there are two types of constructor. One is default, another is parameterized. So if we pass some value or some variable through the argument, okay, then that constructor is known as parameterized. So
in the next program, I will show you how to use parameterized constructor. But in this code, basically, we use this default constructor, and after that this line, no need, because there is no input method now presently. After that ob dot show. Okay, again same thing for ob1 also. ob underscore ob1 dot input यहाँ पे नहीं है, इसको हम comment कर दिए, then ob1 dot show, then save this file using that file name within Java program, control v dot java. Okay, then open the cmd. স্যার নিচের নামগুলো চেঞ্জ করুন, চেঞ্জ গুলো করব। 16ই আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক বলেছিস। তাহলে কি হবে 21 21 আর কিছু আছে? আই থিংক নেই কিছু আর। নেক্সট কম্পাইল করব, সিডি স্পেস জাভা প্রোগ্রাম, দেন জাভা সি, কি ছিল ফাইলটার নাম? টেস্ট এরিয়া স্যার এরিয়া কপি তো করা ছিল মনে হচ্ছে। এরিয়া dot java. Next java c, java area of 10 and 15 is 150. Again area of 10 and 15 is 150. No changes, because default constructor for object 1 and object 2 also, so that is why both cases assign same value. Now if we want to changes the value for every object, then we have to change the definition of constructor, then we have to use parameterized constructor. And again same thing, control v, int x comma int y, then l equals to x comma b equals to अच्छा, suppose ob object takes no argument, but ob1 object takes 2 arguments, suppose 5 and 7. ठीक है, चेंजेस देखते हैं इसका क्या होता है। कंट्रोल एस, yes, see the difference. First one is 10 and 15 150, and second one is 5 and 7 is 35. ठीक है, so one is default argument, sorry, one is default constructor, another is parameterized constructor. So using ये प्रोग्राम यूज करके हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कंट्रोल सी, বল কে তখন রেসপন্স দিচ্ছিলিস, বল। এরিয়া অফ সার্কেল
using this program, how can we show the area of a square? Using parameterized constructor. Using parameterized constructor से हम लोग area of a square दिखाएंगे. বল এখনই তো বলছিলিস, কে বলছিলিস? শিবদাস, অনয়, আর কেউ কিছু বল। गौतम राज, बोलो कैसे करेंगे? Using parameterized constructor, how to make an how to calculate the area of a area of a square? जब प्रोग्राम दिखाइएगा तो बता पाएंगे। हम तो दे दिए, तुम चैट में देखो, प्रोग्राम तो है ही। अच्छा देखो यहाँ इधर, क्या चेंजेस करेंगे बोलो? सर निकालना क्या है? हमको स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर, यहाँ पे हम रेक्टेंगल कर रहे थे ना, तो रेक्टेंगल नहीं करते हम लोग, दोनों नंबर गुण कर देंगे। यस सर, 10 और 15। सर स्क्वायर कर दीजिए ना, L into L। कहाँ? तो आप L into B ले रहे थे, स्क्वायर में हम लोग int y सर को हटा, एक अब B int equal L to y एक ही ले लेंगे। फिर L into L सर बीटा रिमूव कर दें सर। ना, एक ही प्रोग्राम से रेक्टेंगल का भी होगा और स्क्वायर का भी होगा एरिया। इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग रेक्टेंगल का भी निकालेंगे एंड स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे। तो सर एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेंगे जिसमें कि एक पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ x लेगा वो, फिर L इज इक्वल टू x कर लेंगे और फिर उससे रिटर्न कर लेंगे L into। क्या क्या? सर एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, इसके बाद बॉडी में क्या करेंगे बोलो? L इज इक्वल टू x रहेगा बस, B इक्वल और टू y। बी को नहीं लेंगे? नो सर। अच्छा नहीं लेंगे, देन इक्वल टू x ही कर दीजिए, फिर L into B रिटर्न हो जाएगा हमारा। यस, अगर यहाँ पे बी को नहीं देंगे होगा, जब हम यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे एरिया ऑफ एल एंड बी, सो एल का वैल्यू दिखाएगा सपोज 5 और बी का वैल्यू दिखाएगा 0। सो फॉर उसके लिए हम क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स कर दिए। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू एल एंड बी के अंदर असाइन हो गया, सेम वैल्यू। सो स्क्वायर में क्या होता है, एक ही मतलब वैल्यू होता है ना। 5, अगर 5 होगा तो क्या होगा, आउटपुट आएगा 25। सो 5 इज असाइन टू एक्स एंड दैट वैल्यू असाइन टू अगेन एल एंड बी इंस्टेंस वेरिएबल। एंड यहाँ पे और एक टाइम हम सपोज ये, अच्छा और एक बना लेते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दिए एसक्यू स्क्वायर, एक ही वैल्यू हम भेजे 5। सो एक आर्गुमेंट का हम लोग बेसिकली देखेंगे, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को खोजेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एसक्यू। अच्छा ये चेंज करके हम कर देते रेक्ट, इसको भी हम कर देते रेक्ट। और बॉडी में हम और एक चीज करते हैं, डिफॉल्ट जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तब भी ये मतलब ये आउटपुट दिखाएगा। सो 1, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट होगा, ओबी, दैट मींस डिफॉल्ट। तो फर्स्ट आउटपुट आएगा डिफॉल्ट, देन वैल्यू असाइन होगा, देन ओबी डॉट शो
ओबी डॉट शो से क्या होगा, ये आउटपुट आएगा, एरिया ऑफ 10 एंड 15 इज 150 हो गया। सेकेंड टाइम रेक्ट के लिए कॉल होगा 5 एंड 7, 5 एंड 7 कहाँ पे आएगा, 2 आर्गुमेंट में आएगा। उसके बाद एरिया कॉल करेंगे तो कितना आएगा, 5 एंड 7 के लिए 35। लास्ट वन एस क्यू 5 जाएगा 1 आर्गुमेंट, देन 6 शो में जाएगा। देखो आउटपुट, ठीक है। फर्स्ट आया डिफॉल्ट, उसका वैल्यू, देन आया 2 आर्गुमेंट, देन दिस एंड देन 1 आर्गुमेंट। जिस ऑर्डर में हम लोग कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में एक्चुअली आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर 1 आर्गुमेंट का आगे आगे ऊपर ले लेते तो उसी तरह आता। क्लियर है? किसी का डाउट से इस मतलब इस कोड के लिए? नो ओके। तो और एक चीज होता है, इस प्रोग्राम को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों? बिकॉज एक क्लास के अंदर अगर मोर देन वन मेथड का डेफिनेशन है, इफ वी डिफाइन ए मेथड मोर देन वन, मतलब मेथड नेम सेम होगा, मेथड नेम मस्ट बी सेम बट आर्गुमेंट आर डिफरेंट, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे ओवरलोडिंग किसका हो रहा है, कंस्ट्रक्टर का। दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम क्या है, ये नाम है, इसका डिफॉल्ट है, ये भी सेम नाम का मेथड है जो 2 आर्गुमेंट है, ये भी सेम नाम का मेथड है जो मेरा 1 आर्गुमेंट है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, और दिस प्रोग्राम हम लोग इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। बिफोर जावा एक्चुअली और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था जिसका नाम था C++, जो पहले तुम लोग का इसमें था, क्या बोलते सिलेबस में, अभी ये नहीं है। So in C++, basically there is also concept of constructor, but in that case there are 3 types of constructor: default, parameters and copy constructor. Copy, ठीक है। So copy constructor basically यूज होता था कि आर्गुमेंट में हम लोग क्या भेजते थे, मतलब एड्रेस भेजते थे, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा देखो, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू रेफरेंस। हम लास्ट क्लास में बोले थे रेफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस। ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस का डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब व्हेन वी यूज दिस न्यू कीवर्ड, तब होगा ऑब्जेक्ट। जब हम लोग ये यहाँ पे इतना दूर यूज करेंगे, क्लास नेम देन रेफरेंस नेम देन सेमीकोलन, ठीक है। अब रेफरेंस का क्या मतलब होगा, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। इसका मतलब यूजेस क्या है, दिस रेफरेंस कैन रेफर टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कैसा होगा देखो, वी आर इम्प्लीमेंटिंग टू एडिंग टू टाइम क्लास। हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम को ऐड करेंगे। 2 टाइम मतलब 5 आवर, सपोज 50 मिनट्स, ठीक है, और एक टाइम है 3 आवर 40 मिनट्स। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 90 मिनट्स और यहाँ पे आएगा 8 आवर्स। बट दिस 90 मिनट्स इज मतलब नॉट ए वैलिड मिनट, तो ये क्या होगा, ये कितना होगा बोलो, 60 से डिफरेंस आएगा, कितना आएगा 30, और एक इधर चला जाएगा, दैट मीन्स 9 आवर
30 मिनट्स, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे होगा बोलो, कैसे करेंगे प्रोग्राम में इंप्लीमेंटेशन? बोल पाओगे कोई? गौतम राज, how to implement this program? We have to add two time duration, 5 hour 50 minutes and 3 hour 40 minutes. सर मिनट पे कंडीशन लगा देंगे, अगर 60 से ऊपर होगा तो। वो तो लॉजिक है, वो तो हम ठीक है, हम बोल के इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास में कैसे करेंगे, मतलब फॉर दिस पर्पस ये क्लास का कितना वेरिएबल लेंगे और ये 5 और 50 को कैसे लेंगे, ये हम पूछ रहे हैं। सर कोई कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि दो टाइम ले लेंगे, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करके रिटर्न हाँ, तो कर देंगे। दो टाइम मतलब ये इस क्लास के लिए कितना वेरिएबल लेंगे, इस प्रोग्राम के लिए कितना वेरिएबल लेंगे? सर दो वेरिएबल होगा क्या क्या? सर, एक टाइम 1 एक टाइम 2। सर कंस्ट्रक्टर में होगा वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर रहेगा, टाइम 1 टाइम 2, और फिर ऐड करके रिटर्न कर देंगे उसको। मतलब हम लोग जब पैरामीटर से वैल्यू भेजेंगे तो क्या भेजेंगे बोलो? पैरामीटर से वैल्यू भेजेंगे, पैरामीटर से टोटल टाइम इन मिनट्स भेज देंगे, फिर उसको आवर और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, यूजर इनपुट देगा आवर का वैल्यू और मिनट का वैल्यू देगा। 550 देगा एक वैल्यू और एक में वैल्यू देगा सर 340। इंटीजर होगा तो ইন্টিজার হবে, বাট মানে ভেরিয়েবল গুলো কি করে নিব, বা এই একসঙ্গে এই টাইমটাকে কি করে ধরবো, 550টাকে কি করে ধরবো? बोलो गौतम। सर तो 4 Any- वेरिएबल लेंगे, एक 4? आवर एक मिनट में, फिर दूसरा टाइम के लिए एक आवर में, एक मिनट में। सर और कोई तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एनीवन और कोई? ट्राई करो, बोलो क्या होगा, मतलब सैमुल लाई सैमुल। सर या फिर फ्लोट में ले सकते हैं, फ्लोट 5.40 ले लेंगे, 5.50 ले लेंगे, 5 आवर हो जाएगा, 0.50 वाला पार्ट फिर वो मिनट हो जाएगा। तो प्रोग्राम में तुम कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ये 0.50 को एक वेरिएबल में रखना होगा, मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे 5.50 से, कैसे 50 और 5 एक्सट्रैक्ट करेंगे? सर मॉड यूज करके हो सकता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज होता है ऑलवेज इंटीजर के ऊपर में। ओ हाँ, अरे हाँ, यस सर, यस सर। तो सर इसको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर लेंगे। 100 तो को लास्ट इम्प्लीमेंट 100 में 100 से अगर तुम ये करते हो यस तो सर, कितना तो होगा? 550 हो जाएगा, तो 550 हो 550 फिर जाएगा। मॉड्यूलस यूज करेंगे तो लास्ट का 2 कैरेक्टर निकाल लेंगे, 50 निकल जाएगा, तो वो मिनट्स में हो जाएगा, और बाकी जो 5 बचा तुम वो जितना, आवर्स में मिलेगा। ओके ओके समझ गए, तुम जितना इजी में बोल रहे हो उतना इजी तो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुमको फिर से वो कैरेक्टर का मेथड को जानना चाहिए, Yes, मतलब स्ट्रिंग आना मतलब चाहिए। यस सर, तो ऑफ कोर्स आएगा तभी ना कर पाएगा। नहीं, ये सिंपल सा है, इतना तुम मतलब घुमा फिरा, मतलब कॉम्प्लेक्स में मत सोचो, ये बहुत इजी है। यस, দুটো অবজেক্ট বানাবো, কে বললি তুই, কি নাম তোর, কোথায় গেলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনয় ঘোষ, আচ্ছা হ্যাঁ বল, দুটো অবজেক্ট বানাবো তারপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, দুটো শোন শোন, ঠিক আছে দুটো অবজেক্ট নিচ্ছি, 1 মিনিট।
তো অবজেক্টের কি কি ভ্যালু হবে, দ্যাট মিন্স ক্লাসের কি কি ভ্যালু হবে। সাপোজ ধর আমি বানাচ্ছি প্রোগ্রামটা, ধর দিচ্ছি আমি ক্লাস দিয়ে ক্লাসের নামটা দিলাম টাইম আন্ডারস্কোর, ধর আজকে ডেটটা কত 21_9, ঠিক আছে। তারপরে ধর এখানে একটা ভেরিয়েবল নেব, এখানে কটা ভেরিয়েবল নেব, ধর ইন্টিজারই আমি নেব, কটা ভেরিয়েবল নেব, আচ্ছা একটা আওয়ার একটা মিনিট, ভেরি গুড। নেক্সট এটার মধ্যে আমি ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করব, কি করে করব, একদম ঠিক, কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটারাইজ নিচ্ছি, ইন্ট x, ইন্ট y নিলাম। নেক্সট আচ্ছা তাহলে h ইকুয়ালস টু x এন্ড কি আছে বল, m ইকুয়ালস টু y, আচ্ছা হয়ে গেল। দেন একদম ঠিক, একদম ঠিক। এবার তুই এটাকে কি করে মানে বলতে পারবি, মানে ফাংশনের স্ট্রাকচারটা কি হবে, রিটার্ন টাইপ, ফাংশন নেম, আর্গুমেন্ট লিস্ট কি কি নিব বল। সাপোজ আমি মেথড নেমটা নিলাম সাম, ধর সাম, ওকে। আর্গুমেন্টে কি পাস করব, ওকে ob1 কমা এন্ড রিটার্ন টাইপ, এই ফাংশনটা রিটার্ন টাইপ কি নেব, ক্লাসের রিটার্ন টাইপ নিলে কি হয়, একদম ঠিক, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। আন্ডার দ্যাট তাহলে এখানে আমি কি করি, কি লিখবো, ফার্স্ট একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম, বিকজ তার মধ্যে আমরা, আচ্ছা এখানে ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসটা একটু দেখিয়ে দিই। দেখো बेसिकली दिस अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑनोई जो बोला था एकदम सही है, इसी वे में हम लोग को करना होगा। बेसिकली 5 आवर 50 मिनट्स ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ob1 सपोज, एंड सेकंड वन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। वी हैव टू ऐड दिस टू ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ऐड, सो बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट हैज टू मेमोरी, दिस ऑब्जेक्ट का दो मेमोरी होगा, एक होगा आवर और एक होगा मिनट। सेम थिंग फॉर ob2 also, hour and minute। so using constructor we pass the value, so first object का value होगा 5 and second का minute का value होगा कितना होगा 50 and second object का ob2 का value होगा 3 hour and 40 minutes। तो ये ob1 ob2 कहाँ पे हम लोग बनाएंगे, मेन में। ये इसका कोड अभी तक हम लोग नहीं किए, ये नीचे आएगा पब्लिक स्टडी वॉइड मेन, उसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 भेजेंगे, क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइन होगा। कंस्ट्रक्टर एक्चुअली हम यहाँ पे ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बना दिए। नाउ द लॉजिक, बेसिकली लॉजिक में क्या है, हाउ टू ऐड दिस टू नंबर, दिस टू टाइम, बेसिकली हाउ टू ऐड दिस टू टाइम। सो फर्स्ट हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू ऐड दिस टू वैल्यू। सो यहाँ पे 90 आएगा, सो 90 कैसे आएगा, दिस वैल्यू बेसिकली ये 50 किसके अंदर है, 50 बेसिकली असाइन विद इन द ob.m, है ना, ob.m इज इक्वल्स टू 50 प्लस ob2.m वैल्यू कितना है 40। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे ob1.m इक्वल्स टू सॉरी प्लस ob2.m, पहला हम मिनट का वैल्यू ऐड करेंगे। सो दिस वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, और एक ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे लोकली क्रिएट किए, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे हम क्रिएट किए, लोकली। सो उसका भी सेम चीज होगा, मतलब सेम चीज मतलब सेम मेमोरी एलोकेशन होगा। ये क्लास, इस क्लास के लिए जितना भी क्लास वेरिएबल है, सेम वेरिएबल इसके लिए भी असाइन होगा। दैट मीन्स इसका जो मिनट है उसका वैल्यू भी सेट हुआ
दिस टू एडिशन करने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे 50 प्लस 40 90 कहाँ पे आया, OB सॉरी 3 का M के अंदर, बट दिस इज ए नॉट ए वैलिड नंबर। तो वैलिड नंबर नहीं है तो इसको क्या करना होगा, वैलिड करना होगा, ठीक है ना। तो वैलिड करने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको हम थोड़ा लोकल वेरिएबल के अंदर रखते हैं, क्योंकि इसको मॉडिफाई करेंगे, हम इन टेक्स्ट रख दिए। नेक्स्ट OB3.m इक्वल्स टू क्या होगा, अब 90 से कितना लेंगे, इफ वी डिवाइड इफ वी मॉड्यूलस 90 60, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं 60 के बाद इनवैलिड होता है मिनट, सो 90 मॉड्यूलस 60 करने से कितना आएगा रिजल्ट 30। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x मॉड्यूलस 60, सो नाउ OB3.m का वैल्यू हो जाएगा फॉर दिस मतलब वैल्यू के लिए आएगा वैल्यू 30, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड द आवर, आवर के लिए क्या करेंगे, OB3.h इक्वल्स टू प्रीवियस वन देख लेंगे, प्रीवियस वन में क्या है, अगर आवर का कुछ वैल्यू आता है ऊपर से जरूर आएगा, क्योंकि इस एग्जांपल के लिए 1 इज असाइन टू आवर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो x डिवाइड बाय 60 प्लस OB1.h प्लस OB2.h, सो OB3 का m का वैल्यू भी आ गया, एंड x बाय 60 अगर बाई करेंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस के छोड़ के अगर बाई करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 1 क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। अगर सोच लो ये 60 से छोटा है, ये सपोज ये वैल्यू है सपोज 45, एडिशन करने के बाद वैल्यू आया 45, सो 45 मॉड्यूलस 60 रिजल्ट कितना आएगा, अगेन 45, सो ये सेट कहां पे होगा OB3 में, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा x बाई 60, अब x का वैल्यू कितना है 45, सॉरी x का वैल्यू कितना है 45, 45 बाई 60 कितना होगा, हाउ मच 0, सो नथिंग इज एडेड, इसके साथ कुछ भी एडेड नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ दिस फंक्शन, this sum function basically takes two argument, one is object type, two argument as object, and this function return an object because the return type is class name। अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप क्लास नेम होता है दैट मींस दैट मेथड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न में क्या लिखेंगे OB3, क्योंकि OB3 के अंदर ही वैल्यू असाइन हो रहा है, OB3 बस हो गया, फंक्शन इज, फंक्शन का काम खत्म। नाउ माय आउटपुट, आउटपुट के लिए void show, void show में क्या करेंगे, जस्ट system.out.println में वैल्यूज दिखाएंगे, system.out.println हम ऐसे दिखाते आवर प्लस each, ऐसे अगर कोलन देंगे तो कोलन आएगा, प्लस मिनट, हो गया, देन पब्लिक स्टडी void main, within bracket यार क्या करेंगे, दो वैल्यू भेजेंगे, तो फॉर दिस एग्जांपल क्या था 550 एंड 340, सो 5, 50
अच्छा obj1 कर देते हैं obj1 obj2 कितना था 340 था शायद। हो गया। फर्स्ट हम क्या करेंगे उस टाइम को पहले शो करेंगे obj1 डॉट show obj2 डॉट शो हो गया। नेक्स्ट अब सम फंक्शन कॉल करेंगे। सो सी थ्री इक्वल्स टू कोई एक ऑब्जेक्ट देके कॉल करेंगे उस मेथड को। तो सपोज हम obj1 डॉट सम कॉल किए एंड आर्गुमेंट में भेजे obj1 एंड obj2। ठीक है। हम लास्टली उसको शो कर देंगे obj3 डॉट शो एनक्लोज क्लास क्लोज। इस प्रोग्राम को सेव करते टाइम क्लास देके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल टाइम। क्या हुआ? अच्छा अच्छा हाँ एक चीज है बेसिकली हम यहाँ पे क्या किए थे ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाए इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट। बट इन दिस प्रोग्राम हम लोग कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए। सो दिस इज द रूल। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देते हैं प्रोग्राम में इफ वी राइट ए कोड फॉर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू आल्सो राइट द कोड फॉर डिफॉल्ट आल्सो। ठीक है। अगर डिफॉल्ट को नहीं देते हैं तो कंपाइलर वहां पे डिफॉल्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर पैरामीटराइज नहीं करते तो डिफॉल्ट का बॉडी वो अपने से दे देता है प्रोवाइड कर देता है। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे कंट्रोल सी डिफॉल्ट का बॉडी देना होगा। और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं जस्ट ऐसे बॉडी में हम कुछ नहीं लिखे। हो गया। नेक्स्ट देखो आउटपुट क्या है 5 आवर 50 मिनट्स 3 आवर 40 मिनट्स एंड रिजल्ट इज 9 आवर 30 मिनट्स। इस प्रोग्राम को चैट में दे देते हैं। अगर किसी का डाउट है तो पूछो। गौतम समझे प्रोग्राम को? यस सर समझ गए। हेलो सर। हाँ के सर बोल एक और बार रिपीट कीजिए ना सर। की नाम सर कौन हो सोबिक तुम? सोबिक सोभिक। हाँ सोबिक सर। सोभिक पाल। यस सर। अच्छा यहाँ पे बेसिकली पहले मेन से आते हैं हम। ठीक है। मेन से ये दो टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे obj1 obj2 एंड दो वैल्यू है 550 एंड 340। इसके लिए क्या है देखो क्लास के अंदर हम दो वेरिएबल असाइन किए आवर और मिनट। इसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज होगा। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइन हुआ एक्स एंड वाई आवर एंड मिनट। ठीक है। देन obj.show obj2.show तो उसके लिए देखो obj.show में 550 और 340 आउटपुट आया यहाँ पे देखो। ठीक है। नेक्स्ट जो काम करना है हमको क्या करना है दो टाइम का एडिशन करना है। तो दो टाइम का एडिशन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम एक मेथड बिल्ड किए दैट मेथड टेक्स टू आर्गुमेंट एज ऑब्जेक्ट एंड दिस मेथड आल्सो रिटर्न द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए देखो रिटर्न टाइप में क्या है क्लास नेम। लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है प्रिमिटिव टाइप आइदर void या int
या फ्लोट या डबल ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लास नेम। अगर क्लास नेम होता है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू मस्ट रिटर्न द वैल्यू एज ऑब्जेक्ट। इसलिए देखो OB3 क्या है, OB3 इज द ऑब्जेक्ट। अब OB3 के अंदर क्या कैलकुलेशन हुआ देखो। फर्स्टली हम क्या करेंगे, दिस एक्चुअली OB1 एंड OB2 के अंदर क्या है, OB1 एंड OB2 के अंदर OB1 एंड OB2 जब मेमोरी क्रिएशन होता है एट दैट टाइम आवर और मिनट दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पे मतलब मेमोरी क्रिएशन हो जाता है। OB1 के लिए 4 बाइट 448 बाइट, OB2 के लिए भी 448 बाइट। सो यहाँ पे फर्स्ट आया 5 थ्रू कंस्ट्रक्टर 550 और यहाँ पे आया 340 यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो 50 प्लस 40 को कैसे ऐड करेंगे, ऐसे वैल्यू तो ऐड नहीं कर पाएंगे, हमको जाना होगा थ्रू ऑब्जेक्ट। दैट मींस OB1.m प्लस OB2.m। देखो यही हम किए और उसको कहाँ पे रखे, एक लोकल वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल दैट इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन 60 भी हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए लोकल वेरिएबल रखे और नेक्स्ट लाइन में क्या किया, उसका मॉड्यूलस कर दिया 60 से। सो मॉड्यूलस में क्या होता है, रिमाइंडर लेता है। अगर 60 से ज्यादा है तो वो रिमेनिंग पार्ट लेगा और 60 से अगर कम है तो जो वैल्यू आएगा x के अंदर वही वैल्यू लेगा। सपोज अगर 40 है तो 40 मॉड्यूलस 60 करने से क्या होगा 40, बट 90 मॉड्यूलस 30 करने से 60 करने से क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर 60 जो 30 होता है। सो दैट मीन्स 30 इज माई मिनट वैल्यू। और आवर के लिए क्या होगा, सेम थिंग 5 प्लस 3, तो 5 मतलब क्या है OB1.h और OB2.h प्लस प्रीवियस वैल्यू। हो जाने के बाद OB को हम लोग रिटर्न करेंगे क्योंकि OB ऑब्जेक्ट के अंदर ही आवर और मिनट है, OB ऑब्जेक्ट के अंदर ही आवर और मिनट वैल्यू है। इसको रिटर्न किए और रिटर्न वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ, OBJ3 रेफरेंस के अंदर, ठीक है। एंड दैट रेफरेंस को हम लोग शो कर दिए। ठीक है, यस सर। बेसिकली जावा में इसी के थ्रू हम लोग ये भी तुम्हारा इसके थ्रू भी हम लोग कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बोल रहे थे वो अगर टाइम होगा तो नेक्स्ट क्लास में बोल देंगे। तो जहां जहां पे ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा, जहां जहां मतलब फंक्शन के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट भेजना है तो इस प्रोग्राम के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सोभिक। यस सर। और एनीवन, सदफ यास्मीन, सदफ यास्मीन, अंकिता केस, सोनी कुमारी, ओएसी चक्रवर्ती ना चौधरी, ओएसी चौधरी, वाह वेरी गुड। गार्गी, ঠিক আছে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিন এদের, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সব করে সব ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কে কে বল। স্যার একবার স্যার লাস্টের OBJ3 টা একবার বলুন না। OBJ3 কি নাম তোর? দীপাঞ্জন স্যার। দীপাঞ্জন কই রে, দেখতে পাচ্ছি না তো। আচ্ছা OBJ3 কোনটা বলতো? আচ্ছা OBJ3 টা হচ্ছে রেফারেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি অবজেক্ট নিয়েও করতে পারতাম, এটা অবজেক্ট নিয়েও করা যেতে পারতো, কিন্তু আমি এখানে তো রেফারেন্সের কনসেপ্টটাও দিলাম। সো রেফারেন্স মানে হচ্ছে যখন ক্লাস নেম এন্ড অবজেক্টের নেমটা দিয়ে দেবো, বাট কোনো আমি নিউ অপারেটর ইউজ করব না। নিউ অপারেটর ইউজ না করলে কি হবে, এটা একটা রেফারেন্স ক্রিয়েট হয়ে গেল। এবার রেফারেন্স কি করে, রেফারেন্স বেসিক্যালি রেফার টু অ্যান অবজেক্ট, ইট হ্যাজ নো ইটসেলফ মেমোরি, ওর কোনো নিজস্ব কোনো মেমোরি থাকবে না, বাট ও কি করবে অন্য একটা অবজেক্টকে রেফার OBJ1 এর বদলে স্যার OBJ2 ও দিতে পারি। হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার না, এটা বলছিস তো। হ্যাঁ এই কলিং এর জন্য তুই যে কোনো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারিস, কিন্তু এইখানে তুই সাপোজ এইটুকুন ধর এখানে এরকম করেছিস, সাপোজ আফটার দ্যাট তুই এখানে OB3 নিয়ে কল করেছিস, এটা হবে না।
obj3 নিয়ে কল করিস, বাট বিকজ রেফারেন্স নিয়ে কল করলে তোর হবে না, তোকে করতে গেলে অবজেক্ট নিয়ে নিয়েই কল করতে হবে। সো এই চেঞ্জেস গুলো তোরা একবার প্রোগ্রামটা নিয়ে নিজেরা চেষ্টা করিস, ট্রাই করিস। যত প্রোগ্রাম করবি, যত হ্যান্ডসে মানে নিজের থেকে প্রোগ্রাম করবি, তত তোদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হবে। জাভা, বারবার করে বলছি, জাভাতে প্রচুর 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 কনসেপ্ট আছে। হ্যাঁ, মানে সি পাইথন তে কি আছে, লুপ, লিস্ট, বাস এগুলোই আছে, কিন্তু কনসেপ্ট, প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন কি করে করব, সেগুলো কিন্তু জাভা দিয়ে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টে বেসিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। প্রচুর কনসেপ্ট আছে, ক্লাসগুলোকে ফলো কর, আশা করি বুঝতে পারবি। তো কিছুজন ছাড়া তো কেউ রেসপন্স দিস না। বল, আর কিছু ডাউটস আছে দীপাঞ্জন, বুঝতে পেরেছিস? কিন্তু ওকে কোথায় তুই দেখতেই তো পাচ্ছি না, বেরিয়ে গেলি নাকি? না স্যার আছি। তো নেম লিস্টে কোথায় দেখা যাচ্ছে? কি করে বলো? আচ্ছা, ঠিক আছে। सी मोर স্যার, में যখন आएगा सर। কথা বলছে মাঝে দেখুন স্যার 5 নম্বরটা। হ্যাঁ, সে তো দেখতে পাচ্ছি, তোর এখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি নেম লিস্টে খুঁজছিলাম তোকে। क्या बोलो या गौतम राज क्या बोले? सी मोर सर, सी मोर में जाइए, देखिएगा नाम। सी मोड में? अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ ठीक ठीक, सही सही सही। हाँ, इसमें बहुत सारा नाम है। একদম। হ্যাঁ দীপাঞ্জন, দেখতে পেয়েছি এবার। আই নিকিতা, নিকিতা ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিন, হয়ে গেছে ম্যাম? অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিয়ে নিয়েছি, কালেক্ট করে আচ্ছা, নিয়েছি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে। ওকে স্যার, আপনি বলে নিন, তারপর আমি বলছি। না, আমার হয়ে গেছে, আমার হয়ে গেছে, ওটাই বলুন। ঠিক, আপনি বলুন, হয়ে গেছে আমার।